Good morning, student. Now we will start the topic guiding values of Indian Constitution. This is the core portion of this chapter. In this section, we will study the philosophy of the Constitution. What is the philosophy? हमारे Constitution का दर्शन क्या है? Constitution को बनाने के पीछे सोच क्या है? देखते हैं. Let us see. We will see one by one, line by line, each and everything. We will try to understand it. So let's start. In this book, we shall study the exact provision of the Constitution on different subject. Different subject में क्या provision बनाए गए, क्या व्यवस्था बनाई गई, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. हमारे Constitution का philosophy क्या है, दर्शन क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे. We can do it by two way. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our Constitution. ये हम दो तरीके से कर सकते हैं. ये हम अपने नेताओं के विचार जान सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या उनकी भावना थी, उनके विचार थे, क्या उनका सोचना था. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी. और हमें यह भी जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या कहता है. दैट दिस इज़ व्हाट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल प्रस्तावना को रीड करने के बाद हमें जानकारी मिल जाएगी. Now see, let us learn of these. We will see what was the expectation of the different leader from the preamble as well as from the constitution, as well as we will see the preamble of the constitution one by one. First we will see the expectation of the leader from the constitution. The dream and the promise. We will see what the dream has been taken by the different leaders and what the promises to complete this dream. Some of you have noticed the name missing from the sketch of maker of the constitution. Different जो दिए गए हैं constitution makers के जो sketches दिए गए हैं, like बलदेव सिंह जी, that is the what is that? जी दुर्गाबाई Deshmukh, and there are so many. So in that constitution maker, Dr. Rajendra Prasad, and that is Jaipal Singh and H.C. Mukherjee, will notice that some important name is missing, and that is of the Mahatma Gandhi. He was not the member of Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. Although वो Constituent Assembly के मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स थे जो उनके विज़न को, उनके दर्शन को, उनकी बातों को मानते थे. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he has spelled out what he want the constitution to do. 1931 में यंग इंडिया में अपने लेख लिखते हुए उन्होंने कुछ बातें शेयर की थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आशा रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं. लेट अस सी, वी विल सी द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट ही एक्चुअली वांट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे. सी, I shall strive for a constitution which will release India from thraldom and patronage. I shall strive. मैं ऐसे constitution की वकालत करूँगा. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom. सभी प्रकार के
दासता, सभी प्रकार की गुलामी, सभी प्रकार का जो हम एक दूसरे के बंधन से बंधे हुए हैं उससे वो मुक्ति दिला दे। थ्रिल्डम एंड पेट्रोनेस, दासता और गुलामी से आज़ादी दिला दे। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. गांधी जी कहते थे आई शेल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण की सोच रखता हूं इन विच द पुअरेस्ट शैल फील, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वह महसूस करे दैट इट इज देयर कंट्री, यह उसका देश है। इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव नॉइस, जिसके निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड नो क्लास and low class of the people, means everyone is equal, there will not be discriminate on the economic basis, social basis or political basis, all are equal. An India in which there shall be no high class or low class of the people, an India in which all community shall live in perfect harmony, वह पूर्ण रूप से सौहार्द के साथ रहेंगे। There can be no room in such an India for the curse of untouchabilities. अछूत के व्यवहार के लिए किसी भी प्रकार का कोई जगह नहीं रहेगा। मीन्स हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसमें छुआछूत का कोई नाम ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो, और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, या मदिरापान की कोई जगह ना हो या ड्रग्स की कोई जगह ना हो। तो कहते थे मैं ऐसे भारत की सोच रखता हूँ, भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें छुआछूत, शराब और नशा का बिल्कुल कोई जगह ना हो। Women will enjoy the same right as men. There will be equality among the men and women, and I have to satisfy with nothing else. इससे कम में हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होंगे। मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन से आशा है कि समाज के सभी लोग एक समान लेवल पे रहेंगे और जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जिसमें बुराइयां नहीं होंगी। इस प्रकार के हम समाज की आशा करते हैं और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद करते हैं कि वह दिलाने का प्रयास करेगा। ये सोच थी गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ लेट अस सी द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar, who played a key role in the making of Constitution, but he has a different understanding. The dream of India, भारत का जो ड्रीम होगा कैसा होगा, that has eliminated inequality, वो उनको लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद भी लगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया लेकिन इससे अभी भी समाज के अंदर जो असमानताएं हैं वह दूर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वी हैव गिवन द पॉलिटिकल इक्वलिटी, नॉट सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी। लेट अस सी व्हाट ही एक्सप्रेसेस इन एंजाइटीज, हाउ इनइक्वालिटी वुड बी रिमूव्ड। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। अक्सर वह गांधी जी के विचार की आलोचना किया करते थे। In his concluded speech to Constituent Assembly, he stated his anxieties very clearly. Means Constituent Assembly में अपना कंक्लूजन स्पीच देते समय जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय अपने एनेक्साइटीज़ को, खीस को इन शब्दों में व्यक्त किया। लेट अस सी। On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradiction. हम कैसे लाइफ में जा रहे हैं? एक विरोधाभास वाला जीवन जीने जा रहे हैं। लाइफ ऑफ contradiction. In politics, we have equality, and in social and
economic life we will have inequality. They are saying that it's very contradiction. ये बिल्कुल विरोधाभास है. हम कहने के लिए सब बराबर है लेकिन वास्तव में बराबर नहीं है. In politics we will be recognize the principle of one man one vote and one vote one value. राजनीति में हम सभी के समान अधिकार है. प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट का अधिकार है और सभी वोट का समान वैल्यू है. बट इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन of our social and economic structure continue to deny the principle of one man and one value. जिस प्रकार का हमारा सामाजिक ताना बोना है, जो उस समय के समाज में जो छुआछूत की भावना थी, जो समाज में ऊंच नीच की भावना थी, जो समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की भावना थी, जो समाज हमारे कई वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. स्पेशली शूद्रों को मानव समझा ही नहीं जाता था. उन्हें एक ऑब्जेक्ट माना जाता था, एक वस्तु मानी जाती थी, एक निर्जीव वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता था. सो ही इज टेलिंग अबाउट दैट इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू. How long shall we continue to live this life of contradiction? ये जो विरोधाभास वाला जीवन है, हम कितने समय तक जी पाएंगे? It means उनका कहना था कि जो दलित वर्ग है वो इसके खिलाफ आंदोलन करेगा. How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? हम कब तक उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर का दर्जा नहीं देंगे? आज तक आज़ादी के 50 वर्षों से ज़्यादा समय बीत गए और आज तक हम सभी व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता नहीं दे पाए. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल. अगर हम ये करते रहेंगे, अगर इसे जारी रखेंगे, जो व्यवस्था चल रही है, जो व्यवस्था हमने संविधान में बनाई है, अगर ये चलती रही, उसके बावजूद भी हम अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को पेरिल मीन्स खतरे में डाल देंगे और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जो ये डेमोक्रेसी मिली है यह संकट में चली जाएगी. इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि हम आज़ाद होने के बाद भी क्या सभी को समानता का अधिकार दे पा रहे हैं? क्या सभी को समान नागरिक का अधिकार दे पा रहे हैं? क्या सभी को समान रूप से समाज में रहने का अधिकार दे पा रहे हैं? क्या सबको समान रूप से आर्थिक रूप से क्या हम जो रिसोर्सेस हैं क्या उनका सही से बंटवारा कर पा रहे हैं? Let us see finally let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15, 1947. आज़ादी से ठीक पहले 15 अगस्त 1947 के मध्य रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों को व्यक्त किया. देखते हैं उनके क्या विचार थे. He sing, long year ago we made a trust with destiny. Long year ago, बहुत साल पहले हमने क्या किया था? Made a trust with destiny. हमने नियत के साथ साक्षात्कार किया था या हमने ड्रीम देखा था, सपना देखा था. कहते थे बहुत समय पहले हम लोगों ने क्या देखा था? एक सपना देखा था. कैसा सपना? आज़ाद भारत का सपना. And now the time come when we shall redeem our pledge. अब वो समय आ गया है जब हम अपने प्लेस जो हमने जो शपथ लिया था उस पे क्या करें? उस पे अमल करने का. अब वो हमारा सुखद समय आ गया है कि अब वो जो हमने डेस्टिनी देखा था, जो हमने कल्पना किया था, जो हमने लक्ष्य तय किया था, वो अब समय आ गया है. नाउ वी शैल redeem our pledge, not wholly or in full measure but very substantially.
वी शैल redeem आवर प्लेस मीन्स उस प्लेस को हम क्या करेंगे, उसको पाने का प्रयास करेंगे। जो हमने सपना देखा था, जिस भारत का सपना देखा था, उस भारत को जीने का प्रयास करेंगे। वी शैल redeem आवर प्लेस नॉट wholly or in full measure but very substantially, पूरी तरह नहीं तो बहुत हद तक उसको हम जीने का प्रयास करेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, मध्य रात्रि के समय, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, पूरी दुनिया सो रही होगी, इंडिया विल वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, भारत जो है वेक टू लाइफ, जीवन जीने के लिए और आज़ादी के लिए अपने आप को जगाएगा। मीन्स मध्य रात्रि के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, उस समय भारत को एक नया जीवन मिलेगा। वी विल गेट फ्रीडम। ए मूवमेंट कम्स which come but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed find utterance. He is saying that a movement come, ये एक क्षण आता है, which come but rarely in history, वह पल आता है लेकिन कभी कभी आता है। When we step out from the old to the new, जब हम प्राचीन से नए के तरफ मूव करते हैं। When an age end and with the soul of a nation, जब एक युग समाप्त होता है और राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबी हुई थी, long suppressed, find utterance, उसको सांस लेने का मौका मिलता है, उसको खुलकर जीने का मौका मिलता है। It is feeling that at this solemn movement we take the place of dedication to the serve of India and to her people and to the still longer causes of humanities. It is fitting that at this solemn movement, यह बिल्कुल उपयुक्त है कि इस पवित्र क्षण में, इस सोलेमन मूवमेंट, वी टेक द प्लेस, हम क्या करेंगे, हम प्लेस लेंगे, शपथ लेंगे, फॉर डेडिकेशन टू द सर्व ऑफ इंडिया, भारत की सेवा करने के लिए, भारत की सर्विस करने के लिए, एंड हर पीपुल एंड टू द स्टिल लॉन्गर कॉजेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और यही नहीं पूरी मानवता की सेवा करने की शपथ लेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज सेइंग दैट आज़ादी और जो शक्ति होती है वह जिम्मेवारी लेकर के आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसके ऊपर एक जिम्मेवारी है। किस प्रकार की जिम्मेवारी? ए सोवर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवर्जिन पीपुल ऑफ इंडिया। वो कहते हैं ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वह सोवर्जिन बॉडी है। सोवर्जिन मीन्स होता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मीन्स अपने लोग हैं, ये बाहरी लोग नहीं हैं, ये यहीं के लोग हैं। और प्रभुत्व संपन्न मीन्स होता है कि दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। यह अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। वो बता रहे हैं ए सोवर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवर्जिन पीपुल ऑफ इंडिया, और भारत के प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव endured all the pain of labor. Before the birth of freedom, आज़ादी के जन्म से पहले मीन्स हम जो भारत आज़ाद होने जा रहा है, इसकी आज़ादी से पहले हमने तमाम तरह के वो कष्ट झेले हैं। Before the birth of freedom we have endured all pain of labor. हमने जितने जो लेबर, जो प्रसव की जो दर्द होता है, वो सारा दर्द हमने झेला है। एंड आवर हार्ट आर हैवली
with the memory of this sorrow, और हमारा जो हृदय है वो इनकी यादों में दुखी है. Actually, he is talking about the dividation of India and Pakistan. During that time, there was a huge massacre of the people of both the sides. Lakhs of people were killed in that massacre. So he is talking about that. Some of those pain continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that what is that beckons to us now. And he's saying that it is the future that beckons to us now. अब ये भविष्य है जो हमारा इंतजार कर रहा है. The future is not one to ease or resting, but of instant striving, so that we may fulfill the place we have so often taken. The future is not one to ease. जो आने वाला भविष्य है वह आराम करने का समय नहीं है, रेस्टिंग करने का समय नहीं है. Of instant striving, so that we have, but of instant striving, लेकिन वह कैसा समय है? वह कंटिन्यूअस प्रयास करने का समय है. So that we may fulfill the pledge, जिसके कारण से हम अपने जो शपथ लिए हैं उसको पूरा कर सके. We have so often taken, and one we shall take today, और एक और शपथ आज हम लेंगे. The service of India means the service of the millions who serves. जो करोड़ों लोग हैं जो कि दुखी लोग हैं उनकी सेवा करना. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. Was saying that to solve the India means to the ending of poverty. हमें जो गरीबी है इसको दूर करना है, अज्ञानता को दूर करना है, बीमारियों से लड़ना है और असमानता है इससे लड़ना है. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eyes. जो हमारे युग के जो महानतम पुरुष हैं, he was talking about महात्मा गांधी. He has been to wipe every tear from the every eyes. उनका मानना है, उनका विजन है कि प्रत्येक आँख से आंसुओं को पोंछा जा सके, उनके दर्द को मिटाया जा सके, उनके कष्टों को दूर किया जा सके. This may be beyond us. यह हमारे बस की बात नहीं है, यह बहुत कठिन कार्य है. But as long as there are tears and suffering, लेकिन जब तक उनकी आंखों में आंसू है या कष्ट झेल रहे हैं, so long our work will not be over. तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा. हमने देखा, हमने तीन प्रमुख नेताओं के, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों लोगों ने जो समाज के दबे कुचले लोग थे उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए काफ़ी प्रयासरत थे. और ये प्रयास जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह दिखाई देता है, जिसमें समाज के निचले तबके के लोगों को ऊपर जाने का एक प्रमुख अवसर मिलता है. That's all for today.